Good morning, dear student. This is your SP subject. Okay. So, first of all, I will give you the chapter's name and how many chapters are there. See, serial number, chapters, and page number is given. First chapter is your Introduction to Corporate Finance. Second chapter is Sources of Corporate Finance. Third chapter is Issue of Shares. Fourth chapter is Issue of Debenture. Fifth chapter is Deposits. Sixth chapter is Correspondence with Members. Chapter number 7 is Correspondence with Debenture Holder. So these are the letters actually. From chapter number 6, your letters start. Then chapter number 8, Correspondence with Depositor. Chapter 9, Depository System. Chapter 10, Dividend and Interest. And chapter number 11, Financial Market. Chapter number 12 is the Stock Exchange. Okay, so total you have 12 chapter in SP. Okay, so we can start with Introduction to Corporate Finance, that is chapter number 1. First of all, you should know about what is finance. Okay, so start with introduction. What they have given? The term finance is related to money and money management. It means ये किससे related है? Money से और money management. It is related to inflow and outflow of money. What do you mean by inflow? यानी हमारे पास पैसे आते हैं, that is called inflow, और हमारे पास से पैसे जाते हैं, that is outflow. Success of any business organization depend upon the efficiency with which it is able to generate and use fund. But obvious, you know very well, पैसा क्या है? आता है, यानी इनफ्लो, पैसा जाता है, आउटफ्लो. ओके, और ये किसके लिए होता है? ये दिस इज फॉर बिजनेस. डेफिनेशन व्हाट दे हैव गिवन, हेनरी फोर्ड, व्हाट ही हैज गिवन, मनी इज एन आर्म और लेग, use it or lose it. Statement clearly bring out the significance of finance for the success of a business. ये फंड हम जब यूज करते हैं तो डेफिनेटली किस लिए यूज करते हैं? बिजनेस के लिए यूज करते हैं, ताकि बिजनेस में हमको सक्सेस मिले. राइट? ओके, कम टू 1.1. You should know about corporate finance. What is corporate finance? A corporate finance deal with the raising and using of finance by a corporation. It deal with financing the activity of the corporation, capital structuring and making investment decision. Right? Because it raise the fund. Corporate finance में क्या deal होता है? Raising and using of finance by a corporation. It deal with financing the activity of the corporation, capital structuring and making investment decision. उसके हिसाब से हमको investment का decision लेना पड़ता है. And it totally depend upon the finance. जितना हमारे पास finance होएगा, जितना हमारे पास capital होएगा, उसके हिसाब से हम invest करते हैं. Right? Then come to meaning part. Henry Hoagland expressed the view that corporate finance deals primarily with the acquisition and use of capital by business corporation. But obvious, यहाँ प्राइमरी सोर्स क्या है? मनी है. राइट? प्राइवेट सोर्स हमारा क्या है? प्राइमरी सोर्स, दैट इज मनी, और यू कैन से कैपिटल यूज बाय द बिजनेस कॉर्पोरेशन. The term corporate finance also include, what they include? That is financial planning. Financial planning for business is a must. Study of capital market, इसके लिए हमको स्टडी करना पड़ता है कैपिटल मार्केट से. Then market, money market and share market. You know very well what is share market. It also covers capital formation and foreign capital
Even financial organization and bank play very vital role in a corporate finance, right? In this, the finance manager of any corporation has to ensure that what they ensure. First part, what they have given, the firm has adequate finance. फाइनेंस मैनेजर जो होता है, बराबर, अगर बिजनेस कर रहा है तो उसके पास फाइनेंस यानी पैसे, अच्छे पैसे होने चाहिए. एंड इट टोटली डिपेंड अपॉन दी मनी. जितना पैसा रहेगा उसी के हिसाब से वो इन्वेस्ट करते हैं, राइट. देन बी पार्ट, व्हाट दे हैव गिवन, दे आर यूजिंग द राइट सोर्सेज ऑफ फंड दैट हैव मिनिमम कॉस्ट. राइट सोर्सेज ऑफ फंड. सोर्सेज ऑफ फंड क्या है? इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डिवेंचर्स है. ये हमारा सोर्सेज ऑफ फंड है जहाँ पे हम अपना मनी रेज करते हैं, पैसे बढ़ाते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से हमको डिविडेंड मिलता है. ये मैंने आपको 11 में भी पढ़ाया था, राइट. देन सी पार्ट, द फर्म यूटिलाइज रेज फंड इफेक्टिवली. दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट ओनर्स. जाहिर सी बात है, आप पैसा इन्वेस्ट करो, राइट, उसका रिटर्न आपको मिलता है. एंड रिटर्न क्या फॉर्म में मिलता है? दैट इज डिविडेंड. द फॉलोइंग टू डिसीजन आर द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, राइट. दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन. द बिजनेस फर्म हैज टू एसेस टू मार्केट capital market to fulfill it market need. The firm has multiple choice of sources of financing. जाहिर सी बात है, फर्म के पास वेरियस सोर्सेज है सिलेक्ट करने के लिए, और वो सोर्सेज आपको भी पता है क्या है. इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है और डिवेंचर है, जहाँ पे ये पैसा लगाते हैं और इन रिटर्न उनको क्या मिलता है? डिविडेंड. The firm can choose whether it want to raise equity capital or debt capital. Firm can even opt for bank loan. Okay, what is equity capital? Equity capital means what? The shareholder who invest money in equity shares. Shareholder जो है, और shareholder किसको बोलते हैं? The main owner of the company is the shareholder. The person who invests money in equity shares, he called as equity shareholder. और debt capital क्या है? Debt capital is your debenture. हम पैसे डेप्ट कैपिटल में क्या करते हैं? जैसा इक्विटी कैपिटल में हम पैसे लगाते हैं उसी तरह हम डेप्ट कैपिटल में पैसे लगाते हैं. खाली फ़र्क क्या रहता है कि इक्विटी कैपिटल में जो पैसे लगाते हैं हमको डिविडेंड मिलता है, और डेप्ट कैपिटल में हम जो पैसे लगाते हैं उसमें हमको इंटरेस्ट मिलता है, बराबर. देन फर्म कैन इवन ऑप्ट फॉर बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, डिवेंचर्स एक्सेट्रा टू रेज फंड. अभी मैंने आपको बताया था. द फाइनेंस मैनेजर ensured that the firm is well capitalized, that is they have right amount of capital and that the firm has a right combination of debt and equity. फर्म के पास कॉम्बिनेशन रहता है, या तो डेप्ट में पैसा इन्वेस्ट करे या तो इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करे, राइट. देन सी इन द ब्रैकेट, इन द बॉक्स व्हाट दे हैव गिवन. Capital market is a market for long-term debt instrument and equity shares. In this, the market, equity and debt instrument are issued and traded. Issue and traded means what? पहले हमने खरीदा, बराबर, खरीद के फिर हमने बेचा. पहले हमने इश्यू किया, बराबर, ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन होता, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स. Second point what they have given, investment decision. Once the business firm has gained access to capital, एक बार बिजनेस फर्म अगर गेन कर रहा है यानी प्रॉफिट कर रहा है, बराबर, तो फाइनेंस मैनेजर क्या करता है? he will take decision regarding the uses of the fund in a systematic manner.
so that it will bring maximum return for its owner, ताकि जिसमें इन्वेस्ट करे उसमें उनको मैक्सिमम रिटर्न मिले. For this, the firm has to take into consideration the cost of capital. Once they know the cost of capital, firm can deploy or use of fund in such a way that return are more than cost of capital. Okay, so 2 point I have given. फर्स्ट पॉइंट आई हैव गिवन फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी फाइनेंस अगर कर रहा है, पैसा अगर किसी में लगा रहा है तो वो किस में लगाएगा, बिकॉज दे हैव मल्टीपल चॉइस, वो किसी में भी लगा सकता है, चाहे वो इक्विटी शेयर्स में लगाए, चाहे वो डेब्ट कैपिटल में लगाए, राइट. वो उसके ऊपर डिपेंड है, फर्म के ऊपर डिपेंड है, बिजनेस फर्म के ऊपर. सेकेंड मैंने क्या बोला, इन्वेस्टमेंट डिसीजन. एक बार जब पैसे बिजनेस में ज़्यादा आ जाते हैं, प्रॉफिट गेन होता है, तो वो डिसाइड करते हैं कि अपना पैसा हम कहाँ कहाँ पर लगाए. डेफिनेटली अगर बिजनेस में हम पैसे यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉफिट होना ही होना है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय एट इन्वेस्टर. फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट एंड डिप्लॉइंग देम सक्सेसफुली in the business is known as investing decision. It is also called as capital budgeting. इसको हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं, जो बोला जाता है कैपिटल बजटिंग, बराबर. और कैपिटल बजटिंग कब होता है, जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारा प्रॉपर रहता है, जब हमारे पास पैसे भरपूर रहते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि पैसे हम कहाँ पर इन्वेस्ट करें, राइट. Now, come to 1.2, that is importance of corporate finance, right. Total they have given 10 point. How many point? 10 point. Okay, so let us study. In the functional management of business enterprise, importance is given to production, finance, marketing and personal activity. 4 एक्टिविटीज़ होती है. एक होता है प्रोडक्शन, जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस होता है, बराबर. एक होता है फाइनेंस, जहाँ पे पैसे का फाइनेंस होता है, जहाँ पे पैसे का लेन देन होता है. तीसरा होता है मार्केटिंग, जो मार्केटिंग हम करते हैं. एंड चौथा होता है हमारा पर्सनल एक्टिविटीज़. पर्सनल एक्टिविटीज़ मीन्स व्हाट, बाइंग एंड सेलिंग. या तो हम बाय करते हैं, खरीदते हैं, और किस लिए खरीदते हैं, ताकि नेक्स्ट पार्टी को हम बेचें. अमंग ऑल दिस एक्टिविटी, utmost importance is given to financial activity. The importance of corporate finance may be discussed as follow. Total 10 point they have given. सबसे पहला, कॉर्पोरेट फाइनेंस हमको किस में हेल्प करता है. सबसे पहला हमको हेल्प करता है कि इससे हम डिसीजन करेक्ट ले सकें. तो पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, helps in decision making. Most of important decision of business enterprise are determined on the basis of availability of fund. It is very difficult to perform any functions of business enterprise independently without finance. जाहिर सी बात है, बहुत डिफिकल्ट है. अगर हमारे पास फाइनेंस है, हमारे पास पैसा है, तो ही हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं. जब हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे. एवरी डिसीजन इन द बिजनेस इज नीडेड टू बी टेकन कीपली इन व्यू ऑफ इट इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी. जाहिर सी बात है, सबका डिसीजन यही रहता है कि अगर हम पैसे इन्वेस्ट करें तो उसमें प्रॉफिट हमको मिले, राइट. देयर आर मैनी नंबर ऑफ अल्टरनेटिव. हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स रहते हैं, बट the management is required, what they required, to select the best one which will enhance profitability. Business organization can give green signal to the project only when it is financially viable. What do you mean by financially viable? It means जब हमारे पास पैसे अच्छे रहते हैं तो वहाँ पे ग्रीन सिग्नल हमको मिल जाता है. ग्रीन सिग्नल मीन्स व्हाट, हर कॉर्पोरेट फाइनेंस
ईजिली वो बाय और सेल कर सकता है. Thus corporate finance plays significant role in decision making process, right? Then come to point number second. It helps in raising capital for a project. Whenever a business firm want to start a new venture, it need to raise capital. Business firm can raise fund by issuing shares, debentures, bond, or even by taking loan from the bank, right? तो अगर जब भी हम नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, यानी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बराबर, तो हमको कैपिटल रेज करने के लिए क्या करना पड़ता है? शेयर को इश्यू करना पड़ता है, डिवेंचर को खरीदना पड़ता है, बॉन्ड, और इवन बाय टेकिंग लोन फ्रॉम दी बैंक, राइट? थर्ड पॉइंट, हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. Research and development must be undertaken for the growth and expansion of business. Detailed technical work is essential for execution of project. Research and development is lengthy process and therefore funds have to be made available throughout the research work. This would require continuous financial support. So for this, research and development is required. It is very necessity. Many a time company had to upgrade its old product or develop new product to transact the consumer. For this, company has to conduct survey, market analysis, etc., which again requires financial support, right? So come to point number fourth. हेल्प्स इज स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फॉर्म. जाहिर सी बात है, आ स्मूथ फ्लो ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस इज नीडेड सो दैट सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज आर पेड ऑन टाइम, राइट? सो इसमें क्या होना चाहिए कि जो बिजनेस चल रहा है वो रनिंग में होना चाहिए, अच्छे से चलना चाहिए. अगर बिजनेस अच्छे से चलेगा, कंपनी को अगर प्रॉफिट मिलेगी, तो उसी में से, वही प्रॉफिट में से एम्प्लॉय की सैलरी होगी. आर पेड ऑन टाइम, टाइम पे वो पे होता है. लोन आर क्लियर्ड ऑन टाइम. लोन अगर लिया हुआ है कंपनी ने, तो लोन भी टाइम पे वो पे करता रहे, इंटरेस्ट उसका लोन का वो पे करता रहे. रॉ मटेरियल इज परचेज वेन एवर रिक्वायर्ड. सेल प्रमोशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इज कैरिड आउट स्मूथली एंड न्यू प्रोडक्ट कैन बी लॉन्च इफेक्टिवली. जाहिर सी बात है, अगर हमारा कंपनी, अगर हमारा बिजनेस स्मूथली चल रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारा जो प्रोडक्ट है, बराबर, चेंज होता रहेगा. बिकॉज सेम प्रोडक्ट में बिजनेस नहीं होता है. प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है? मार्केट में चेंज होता रहता है, राइट? उसके कंटेंट जो रहेंगे, उसकी जो क्वालिटी रहेगी, उसकी जो क्वांटिटी रहेगी, बराबर, चेंज होता रहता है. देन कम टू पॉइंट नंबर 5. ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज. कॉर्पोरेट फाइनेंस सिग्निफिकेंस रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन. एग्जाम्पल, प्रोडक्शन विल सफर if financial department does not provide adequate finance for the purchase of raw material and meeting other day-to-day financial requirement for smooth running of production unit. Due to this, sale will also suffer and consequently the income of the concern as well as rate of profit will be affected. Thus, efficiency of every department depend upon the effective financial management. Now, you know very well, business कोई भी हो, उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. जो भी एक्टिविटीज़ है बिजनेस फाइनेंस का या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का, उसमें अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो डेफिनेटली बिजनेस विल बी एट अ बूम लेवल.
ताकि हमारा बिजनेस आगे बढ़ता रहे। और वो बढ़ने का कारण क्या रहेगा? बढ़ने का कारण कोऑर्डिनेशन रहेगा। कोऑर्डिनेशन है तो डेफिनेटली बिजनेस बढ़ेगा, और जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं है तो हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। इवन दे कैन सफर लॉस ऑल्सो। सो फॉर दैट कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। Then come to point number 6, that is promotes expansion and diversification. Point number 6. Modern machine and modern technique are required for expansion and diversification. Corporate finance provide money to purchase modern machine and technology. जाहिर सी बात है, जैसा जैसा हमारा टेक्निक बढ़ता गया, जैसा जैसा मार्केट बढ़ता गया, नई नई मशीन आई, नया नया टेक्नोलॉजी बढ़ा, राइट, उसी तरह मॉडर्न मशीन और टेक्नोलॉजी खरीदे, बिजनेस में यूटिलाइज किया, एंड देयरफॉर फाइनेंस बिकम मैंडेटरी फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ए कंपनी. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपांशन? एक्सपांशन मीन्स व्हाट? जैसा जैसा हमारा टेक्नोलॉजी आया, न्यू न्यू मशीन इन्वेंट हुआ, उसी तरह हमारा बिजनेस भी उसी के वजह से एक्सपांड होते गया, राइट. पॉइंट नंबर 7, मैनेजिंग रिस्क. बिजनेस करना कोई मामूली बात नहीं है, कोई आसान बात नहीं है. बिजनेस जो भी करता है वो रिस्क लेके करता है. जब तक वो रिस्क नहीं लेगा तब तक समझेगा नहीं कि बिजनेस में क्या अप्स एंड क्या डाउन होते हैं. कंपनी हैज टू मैनेज सेवरल रिस्क सच एज सडन फॉल इन सेल्स, लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, लॉस ड्यू टू स्ट्राइक, एक्सेट्रा. कंपनी नीड्स फाइनेंशियल एड टू मैनेज सच रिस्क. जाहिर सी बात है, हमको नहीं पता है कि ये रिस्क कब आने वाला रहता है, बिकॉज ये नेचुरल कैलेमिटीज है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट. देन कम टू पॉइंट नंबर 8, रिप्लेस ओल्ड एसेट. Assets such as plant and machinery become old and outdated over the year. They have to be replaced by new asset. Finance is required to purchase new asset. Right. जाहिर सी बात है, जो भी हमारे पास जूनी मशीन है, ओल्ड मशीन है, आउटडेटेड है, तो हम रख के क्या करेंगे? फॉर दैट व्हाट corporate finance have to do? They have to replace, right? They have to replace by new assets. Finance is required to purchase new assets. Point number 9, payment of dividend and interest. Finance is needed to pay dividend to the shareholders, interest to the creditors, banks, etc. जाहिर सी बात है. Payment of dividend. Payment of dividend means what? The firm, the corporate finance will pay the dividend to whom? To the shareholder. Shareholder ने पैसा लगाया, बराबर, बिजनेस में पैसा लगाया शेयरहोल्डर ने, इन रिटर्न शेयरहोल्डर को डिविडेंड मिलेगा. उसी तरह डिवेंचर होल्डर ने पैसे लगाया, बराबर, इन रिटर्न डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है. ओके. So, last point, payment of tax fees. Company has to pay taxes to the government such as income tax, goods and service tax goods, GST. आपको भी पता है what do you mean by GST. And fees to registrar of companies on various occasion. Finance is needed for paying these taxes and fees, right? So, whatever I have given to you, whatever I have explained to you, what is your work? Again you read and understand it. आप उसको एक बार रीड करो, उसको समझो, जब हो जाए तो बुक में लिखना स्टार्ट कर दो, राइट? और बुक में क्या लिखना स्टार्ट करोगे?
हम स्टार्टिंग से क्या करेंगे, सबसे पहला कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग लिखेंगे, देन डेफिनेशन लिखेंगे और उसका 2 डिसीजन लिखेंगे, राइट, इन योर बुक. देयर आफ्टर व्हाट यू हैव टू राइट, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, राइट, टोटल 10 पॉइंट. अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करना, जो पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू यूट्यूब. ओके, सो आज के लिए इतना ही है. थैंक यू.